Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is exponent and power. So, student, yesterday we learned what is exponent. So, power, exponent, index is the same. जो भी हम पावर बोलते हैं that is called exponent. Okay, and in this chapter we learn so many laws of law for exponent. Okay, now and we know that why the exponent and power is needed, because if we want to express very large number and very small number in easy way, so we can write it in a एक्सपोनेंट. ओके, सपोज अगर हमें अर्थ का मास लिखना है और वी कैन एक्सप्रेस मून का मास और डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ, सो वी कैन राइट इट इन एक्सपोनेंटेड पावर. And the main thing we know, if a to the power 0 is any number, so a is the base and 0 is called the exponent, power or index. We can say that is exponent, that is power, or that is index. Okay, and we read it a to the power, a raised to the power 0. And if any number having power 0, that means उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1. Okay, if any number having power 0, its value is 1. If any number having power 1, that means that is number itself. Okay, or if any number having negative power, so we can write it 1 upon a to the power 1. अगर 1 पावर है, अगर n पावर है, so you can write 1 upon a to the power 1. Okay, or n. Okay, understand? So this way we can write the power of any number. Okay, and we learn the loss means it if the base is same and the both number is in multiplication, then we can multiply the both the number. Then we add the power of the numbers. Okay, suppose a to the power m into a to the power n. Here a is same number, so we can write a to the power m plus n. Okay, understand? सेम अगर वो दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों नंबर डिवीजन में है, सो वी कैन subtract both the number. Okay, and power of the power is always multiply. Okay, understand? And if the base is same, base is different and power is same. See, base different है but power same है, so we can write it a into b whole power m. Okay, understand? And if any number having a to the power m or b to the power m, so we can write a upon b whole power m. Okay, understand? So this way we can write the powers. Okay, understand? Now we can complete the question first, second, third and fourth. Okay, we can complete this question in our previous video. Now question number 5th is, what is our question number 5th? Just a minute. Question number 5th is 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5. And we have to find the value of m. Okay, so in this question what we can do here, हम पहले जगह कर लें उसके लिए. Now what is the question? 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे. So here we can get 5 to the power m minus minus plus 3 is equal to 5 to the power 5. Both are having 5, both 5 की पावर है, बेस सेम है, so we can write m plus 3 is equal to 5. So what is the value of m? 5 minus 3, so m is equal to 2 is your answer. Okay, understand? So this way you can complete the question number 5. Now question number 6 and 7 you can do. Okay, understand? Suppose question number 6 का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ.
If you want to complete the question number 6, then सो 1/3 होल पावर -1 का मतलब हुआ 1 की पावर -1/3 की पावर -1, सेम. ओके, अंडरस्टैंड. सो इसका मतलब हुआ 3/1 -1/4, 4/1. ओके, एंड होल पावर क्या है? -1 है. सो 3 - 4 डेट इज -1. बेस सेम है. -1 की पावर -1 मीन्स -1 टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/-1 और अवर आंसर इज -1. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5/8 होल पावर -7 इंटू 8/5 होल पावर -4. ओके, सो here 5 to the power -7 upon 8 to the power -7 into 8 to the power -4 upon 5 to the power -4, and we know that if a to the power m, so हम उसे लिखते हैं 1/a to the power m. पॉजिटिव पावर में बदलने के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, 8 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 7 इंटू यहाँ पर आएगा 5 टू द पावर 4 अपॉन 8 टू द पावर 4. हियर अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव पावर में चेंज हो गए सारे. सो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 7 - 4 इंटू 5 टू द पावर 4 - 7. ओके, सो वी गेट अगेन 8 टू द पावर 7 - 4 अपॉन 5 टू द पावर 7 - 4. सो 8 की पावर कितनी बची? 3 अपॉन 5 टू द पावर अगेन 3, और you can write 8 to the power 3 into 5 to the power -3 is your answer. Okay, understand. Now see question number 7. How to complete question number 7? See, 25 into t to the power -4, t raised to the power -4 upon 5 to the power -3 into 10 into t to the power -8, where t is not equal to 0. It's given. ओके, सो हमें पता है यहाँ हमें 5 की टर्म दी हुई है, यहाँ 10 है. तो हम अगर ये 5 है तो 5 की टर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 5 का स्क्वायर अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर -8. ओके, नाउ जो माइनस वाली पावर्स हैं उसे हम क्या करेंगे? सेम बेस दिख रहा है हमें. पहले तो हम जोड़ देंगे 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर -8. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी गेट 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 प्लस 1 डेट इज -2 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर -8. ओके, ये -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 -2 इंटू टी टू द पावर -4 -8 अपॉन 2. सो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2 प्लस 2 इंटू टी टू द पावर -4 प्लस 8. ओके, अपॉन 2. सो वी गेट 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2. ओके, अंडरस्टैंड. और आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 5t की होल पावर 4 अपॉन 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वाला भी आपको इस टाइप से ही कंप्लीट कर लेना है. सपोज हमें दिया हुआ है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 टू द पावर -7, 6 टू द पावर -5.
अब आपको जो नंबर दिख रहे हैं कि जिनका आप फैक्टर्स कर सकते हैं तो उसे आप फैक्टर्स कर देंगे। आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर -5, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 टू द पावर -7, 2 इंटू 3 होल पावर -5। ओके, अब इसे फिर से आप खोलेंगे। सो यू कैन गेट 3 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5, 5 टू द पावर -5 इंटू 5 क्यूब अपॉन 5 टू द पावर -7, 2 to the power -5, 3 to the power -5. ओके, अंडरस्टैंड। 3 to the power -5 से 3 to the power -5 कैंसिल, 2 to the power -5 से 2 to the power -5 कैंसिल। ओके, सो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 5 to the power -5 इंटू 5 क्यूब अपॉन 5 to the power -7। ओके, हमारे पास यही बचेगा यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन 5 टू द पावर -7। सो यू गेट 5 टू द पावर -2 अपॉन 5 टू द पावर -7, और यू कैन राइट -2 -7। Five to the power 5 is your answer. Okay, understand? So this way you complete the question number 7. Okay, now use of exponent to express small number in standard form. So small और big number को हम exponent form में कैसे लिख सकते हैं? Suppose the distance of the earth to the sun is 149600000 मीटर, जो भी आपको दिया हुआ है इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो जो भी लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को हम किस टाइप से एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख सकते हैं? सो सपोज सी हियर हाउ मेनी जीरोस आर हियर। सो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 जीरो दिख रहे हैं। बट जब भी हम एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखेंगे सो हमें डेसिमल के बाद एक नंबर छोड़ना है। ओके, बाकी के नंबर्स को हम किस में लिखेंगे? डेसिमल में। ओके, सो आवर आंसर इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे वी कैन राइट द नंबर। सपोज अब ये नंबर दिख रहा है आपको, सी द नंबर, हाउ मेनी जीरोस आर दियर? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें तो 7 अपॉन में लिखना है क्योंकि हमें डेसिमल के पहले खाली एक नंबर चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। 7 अपॉन कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 10 टू द पावर 6। तो हम इसे लिखेंगे 10 7 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे वी कैन फाइंड द एक्सपोनेंटल फॉर्म। ओके, कोई भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वो छोटे से छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर हो। सपोज नेक्स्ट नंबर देख लो, अगर 0.0016 है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 16 अपॉन कितने जीरो दिख रहे हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4। सो हमने 4 जीरो लगा दिए, डेट मीन्स 10 टू द पावर 4। बट व्हेन वी गो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें डेसिमल के पहले खाली एक ही डिजिट चाहिए, तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10। हम अगर 16 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 का डिवीज़न करेंगे सो हमारा बचेगा 1.6 इंटू 10। सो 1.6 इंटू 10 हमारा अपॉन 10 टू द पावर 4 हो गया। सो हमारा आंसर क्या आया? 1.6 इंटू 10 अपॉन 10 टू द पावर 4। सो 1 minus 4 that is -3. Okay, so this your answer is 1.6 into 10 to the power -3. Okay, understand? So this way we can find the standard form of any number. Okay, understand? So see, comparing very large and very small number, जब हमें दो नंबर्स को वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स को कंपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं? तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है द डायमीटर ऑफ सन अगर हमें दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.276756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब बोथ आर इन मीटर। Suppose you want to compare the diameter of the earth with the diameter of sun.
सो हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सन क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁹ और अर्थ का क्या है 1.2756 इंटू 10⁻⁷। सो हम सबसे पहले तो जो पावर्स हैं उसको माइनस करेंगे। सी हियर हमने क्या किया है, 10 टू द पावर है तो हम पावर्स को माइनस कर लेंगे, 9 - 7 अपॉन दिस। सो 1.4 10 टू द पावर 2 बचेगा, डेट इज 100 अपॉन 1 विच इज अप्रॉक्सीमेट। यह आंसर हमेशा अप्रॉक्सीमेट है। ओके, द डायमीटर ऑफ सन इज अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें ऊपर 100 दिख रहा है। ओके, सो अबाउट 100 टाइम। सो हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सन इज अबाउट 100 टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, बिकॉज हम या तो आप सिंपली देख सकते हो 10⁹ ऑलवेज बड़ी होगी 10⁷ से। ओके, अंडरस्टैंड। 10⁹ का मतलब हुआ 1.4 के आगे 9 जीरो हैं। ओके, एंड 1.2756 के आगे 7 जीरो हैं। ओके, सो यू कैन ईजिली फाइंड द विच इज़ द ग्रेटर नंबर। ओके, नाउ 12.2 question number first, second, third and fourth is your homework. Okay, you have to complete this question. Now see, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देती हूँ. Suppose express the following number in standard form. So when you want to find the standard form, of any number, then first of all you have to convert it into, सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। डेसिमल नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। सो आप पहले क्या करेंगे, ज़ीरोस काउंट कर लेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, टोटल 13 डिजिट्स हैं। तो हम अगर इसे लिखेंगे 85 अपॉन 10 टू द पावर 13। ओके, बिकॉज 13 हमें ज़ीरो देखना है, बट हमें तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट चाहिए। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे अपॉन 10 टू द पावर -12 इज़ योर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। सो सेम वे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and fifth question you have to complete. Now express the following number in usual form. सपोज यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, अब हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नंबर, 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। सो आप इसे लिखेंगे कैसे, हम थोड़ा सा ऊपर जगह ले लेते हैं, वहाँ पर करते हैं। ओके, यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम उस नंबर को, जस्ट अ मिनट, (3.02 इंटू 10 टू द पावर -6). ओके, सो 10 टू द पावर -6 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 अपॉन में 6 जीरो है। अब हमारे पास तो 0.02 है, अगर इसको डेसिमल को हम चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 302 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 6। सो हम इसको लिख सकते हैं 302 अपॉन 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 + 2 डेट इज़ 8। ओके, अब ये 8 जो है मीन्स इसका मतलब हुआ 302 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो व्हाट इज़ योर आंसर, योर आंसर इज़ 0.12345302। दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो दिस वे यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। अब सपोज आपको सेकेंड वाला दिखना है, सेकेंड वाले में है आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। सो हियर 45 अपॉन 10 लिख सकते हैं इसे आप। ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है। सो यू कैन राइट 10 टू द पावर 4 - 1
45 इंटू 10 क्यूब. सो 4 5 10 क्यूब का मतलब हुआ कितने ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो. ओके, सो दिस इज़ योर आंसर. ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड क्वेश्चन आपको इस टाइप से कर लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, express the number appearing in the following statement in the standard form. See one more thing, जहाँ डेसिमल है वहाँ तो आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कंप्लीट कर लोगे, बट जहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं है, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला देखते हैं, तो थर्ड वाले नंबर में आप क्या करेंगे, 602, कितने ज़ीरो हैं वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 ज़ीरो हैं. सो आपको इस 13 ज़ीरो को कन्वर्ट करने के लिए 13 ज़ीरो से, अभी 13 ज़ीरो जो आपके पास में है इनको कट करना पड़ेगा. इनको कट करेंगे तभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो व्हाट कैन यू डू हियर, हियर यू कैन मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको उतने ही ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जितने ज़ीरो से डिवीज़न कर रहे हैं. ओके, उतने ज़ीरो कट करने के लिए आपको टोटल कितने ज़ीरो हमने बात करी, हमारे पास ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 15, टोटल 15 ज़ीरो चाहिए हमें. ओके, सो 15 ज़ीरो से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डिवीज़न भी करोगे. सो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 15. बट अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है टोटल हमारे पास ज़ीरो है 13, बट ये 0.02 को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास ज़ीरो कितने हो जाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके, अंडरस्टैंड, मीन्स हमारे पास है वो 602 इंटू 10 टू द पावर 13, बट हमें डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है इसे. सो ये हमारा हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15. ओके, अंडरस्टैंड, so this way you can write the answer. Now question number third, express the following, express the number appearing in the following statement in standard form. अब इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करना है, राइट डाउन करना है. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, in a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheet each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? So you have to find the total thickness of the stack also. Okay, understand? So complete this question in your notebook. Okay, and in this question, in this chapter we learn about power and exponent, how to convert the any number to the exponent. Okay, understand? And these are main formula for the law of exponent. These are main law of exponent. Okay student, understand? So complete this chapter. Have a good day.